start our next part of today's session, and it's about digestive health, digestive system health. So today with us is Rashmi Vaishne. So let me introduce. Rashmi Vaishne is a nutritionist and an educator. She is passionate about health and fitness and wants more and more people eat healthy. Her focus is on holistic wellness and coaching people for a healthy weight loss or just eating welcome food. She educates her clients on the importance of well-balanced diet, including all food groups, and most importantly, using tools for a positive mindset. With her education in nutrition and experience, she has helped a lot of people reach their goal by guiding them make simple changes in their diet and get the optimal health. So here is Rashmi. So now your turn and stage is yours. Thank you for coming. Gulnasi. Thank you Gulnasi. सबको सबसे पहले तो नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या बोलते हैं, आदाब 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 अर्ज़ है। It's good to be back. वापस मैं आई हूँ, तो I'm happy to see you all. So without further ado, let me share my screen. Can you all see my screen? Yeah. Okay. So first of all, welcome and thank you for joining us today. I'll take the questions at the end. हाँ यही मैंने पूछना था कि questions हम end तक संभाल के रखें. Right, yeah. हमारा पेट ज्यादा तो नहीं दर्द होगा तब तक. नहीं, आप chat box में लिख दीजिए या बाद में at the end of this session you can ask me. Thank you. Okay, so today's topic is digestion and you, aka your digestive system health. So यहाँ मेरा disclaimer है, the content including advice provides generic information only. It is in no way a substitute for a qualified medical opinion. Always consult a specialist or your own doctor for more information. I do not claim responsibility for this information. So I always begin with my presentation with a quote, what we eat determine how well our digestion works by Alex Jamieson. तो ये इसी में मैं बिलीव करती हूँ कि हम क्या खाते हैं उस पे बहुत ज़्यादा हमारा जो डाइजेशन है वो डिटरमिन करता है, उस पे ज़्यादा वो बेसिस है. तो अब हम देखेंगे कि हमारा डाइजेशन क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं या नहीं हेल्प करती. So in today's session, we will take a look at the following points. Digestion and absorption. Digestion and absorption क्या है? Some digestive problems, कुछ digestive problems जो हमें होती हैं. Causes for poor digestion, हमारा जो digestion है वो खराब क्यों होता है, उसके कुछ causes मैं आज उनके बारे में बात करने वाली हूँ. Issues due to poor digestion, तो हमारा जब digestion जो है वो गड़बड़ा जाता है तो उसकी वजह से हमें और क्या क्या problems आती हैं उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे. And how to improve your digestion. तो ये जो है 5 चीजों के ऊपर बात करेंगे. तो सबसे पहले तो फिर से जो है हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं. तो that will activate your brain. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, how long do you think it takes for a meal to be digested completely? हम जो खाना खाते हैं, कोई भी खाना, उसको पचने के लिए, पूरा completely पचने के लिए कितना समय लगता है? 3 hours. 3 to 4 hours, please. Okay. Yeah. 3, 4. Okay. तो you'll be surprised to know कि हमारा खाना पूरा completely digest होने में 1 से 3 दिन लगते हैं. तो हमने एक मील खाया, उसको पूरा completely पचने के लिए कम से कम 1 दिन से 3 दिन तक लग सकते हैं. तो अगर हम हर 4 घंटे में खाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारी डाइजेशन की कैसे हम बैंड बजाते हैं खुद ही. Vitamins and minerals are absorbed directly into the bloodstream. जो हमारे vitamins और minerals हैं हम जो खाना खाते हैं उनमें से वो directly हमारे bloodstream में जाता है. True or false? False. True. Okay.
तो दिस इज ट्रू। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट्स है वो अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है, पर जो विटामिन और मिनरल्स हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और वो हमको उस हिसाब से एनर्जी और जो भी रिपेयर करना है वो देते हैं। डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह से शुरू होता है, सही है या गलत है? Yes. Yes. ओके, तो इट इज ट्रू। हम जैसे ही खाना शुरू करते हैं, चबाना शुरू करते हैं, तो हमारे सलाइवा के साथ जो है हमारा खाना डाइजेशन में उसकी प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन, द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर। हम हमेशा फाइबर की बात करते हैं, पर क्या आपको लगता है कि ह्यूमन बॉडी जो हमारी बॉडी है वो फाइबर डाइजेस्ट कर सकती है या डाइजेस्ट नहीं कर सकती? सो द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, ट्रू और फॉल्स? True. इट इज ट्रू। हमारा जो False. बॉडी है वो Yes, फाइबर it is. डाइजेस्ट नहीं करता। फाइबर जिस फॉर्म में जाता है उसी फॉर्म में वो निकल जाता है। उसका मेन जो काम है वो सारा जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बांध कर वो ले जाता है अपने साथ। इफ यू डू नॉट poop every day, there is something wrong with your digestive system. तो अगर आप रोज पॉटी नहीं जाते, रोज poop नहीं करते, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, सही है या गलत है? Yes, true. Okay? ये बात गलत है, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि क्यों गलत है। डाइजेस्टिव हमें हर रोज, हर बॉडी अलग अलग है। यू डोंट हैव टू, अगर आपकी बॉडी जो है नहीं poop एक्सक्रीट कर रही, तो जरूरी नहीं है कि जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। Maybe some people don't eat much. Some people there are so many not, factors. then they have to go. If they don't eat enough, then there's nothing else to excrete. Right. Aerobic exercise is the best type of exercise to keep your digestive tract in shape. तो aerobic exercise जिसमें हमारी heart rate बढ़ती है, it is the best type of exercise to keep your digestive tract in shape. True or false? False. It's true. It is true, क्योंकि हम जब एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, साथ में हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं, तो उससे हमारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, जब क्योंकि ब्लड फ्लो होता है तेज, तो उससे हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी वो ट्रैक कराता है। ओके, तो अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ। तो जैसे अभी हमने बात करा कि डाइजेशन स्टार्ट्स इन योर माउथ, च्यू योर फूड प्रॉपर्ली। तो अगर हमने ठीक से खाना अगर चबाया नहीं है, तो वो हो सकता है कि वो अंदर पेट में जाके कहीं ना कहीं वो बैठ जाएगा। तो आप अच्छे से चबाइए अपना खाना, और कम से कम 25 से 30 बार एक बाइट को चबाइए। Digestive disorders are one of the leading causes of hospitalization among US and Canadian adults. हमारा बहुत सारे जो, अगर आप कनाडा या यूएस में देखेंगे, हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं, पेशेंट्स हैं, उनमें से जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वाले लोग हैं वो भी जो है उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। About 28% children population suffer from constipation. और उसका भी रीजन जो है, बहुत सारे रीजंस हैं, पर आई एम नॉट गोइंग टू कवर दैट टुडे, पर दैट्स अनदर टॉपिक। पर nearly 1/3 children population suffer from constipation. A lifestyle change is necessary in order to achieve a better health. तो आपका जो डाइजेशन में कोई अगर इश्यू है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए और अपनी हेल्थ को ठीक करिए। So some people think that they have to pass stool at least once a day. This is not true. If your bowel movement is from 3 per day to 3 per week, it could be considered normal. तो अगर आप दिन में 3 बार जाते हैं या एक हफ्ते में 3 बार जाते हैं, तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। A diagnosis of constipation is made when fewer than 3 bowel movements occur within a week. तो अगर हफ्ते में 3 से कम अगर bowel movement आपकी हुई है, तो फिर constipation का डायग्नोसिस डॉक्टर कर सकता है। पर अगर आपकी 3 है, 4 है, तो अराउंड 3 है पर वीक, तो you're not constipated. A common sign that constipation does not exist is the presence of soft stools that are easily excreted. तो आप जब जो है जब भी आप वॉशरूम जाते हैं और आपका एक्सक्रीशन ठीक से हो रहा है, चाहे वो 2 दिन बाद हो रहा है, तो that's not a sign of constipation. तो अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या है?
डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 99% कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, जो ग्रेन्स हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या और दाल वगैरह हैं, तो 99% कार्बोहाइड्रेट, 92% प्रोटीन एंड 95% ऑफ द फैट दैट वी ईट आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। तो ये सब हमारे जो है बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो बाकी का नहीं एब्जॉर्ब होता वो जो है वो साथ में निकल जाता है। Dietary fiber leaves the digestive system in the same form as it entered. Humans don't have enzymes that break down fiber. तो जैसे डाइटरी फाइबर है, जो जैसे सब्जियों में जो फाइबर है या होल ग्रेन में जो फाइबर है, वो जिस फॉर्म में गया है हमारे स्टमक के अंदर, उसी फॉर्म में वो बाहर निकलेगा। हमारे बॉडी में इतने एंजाइम्स नहीं है जो फाइबर को ब्रेक डाउन कर सकें और जो है उसको पचा सके। तो जिस फॉर्म में वो गए हैं उसी फॉर्म में निकलेंगे। पर थोड़ा सा फाइबर जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, बैक्टीरिया जो है वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ओनली वेरी फ्यू लिटिल फाइबर इज डाइजेस्टेड इन द लार्ज इंटेस्टाइन बाय बैक्टीरिया। सम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, तो एसिडिटी, बहुत लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एब्डोमिनल पेन, पेट में जो है दर्द होता है। ब्लोटिंग होती है, पेट फूल जाना खाने के बाद, या इवन कई बार खाया नहीं होता फिर भी लगता है कि पेट फूला है और हम एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते उसके बाद क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस, हार्टबर्न, इरिटेबल बाउल, इन्फ्लेमेटरी बाउल जो हमें दर्द करता है, पेन देता है, एंड मैनी मोर। तो बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, तो सब मैंने नाम नहीं लिखे हैं, पर जो कॉमन है जो हमें देखने को मिलते हैं वो है एसिडिटी, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन। कई लोगों को डायरिया हो जाता है, कुछ भी खाया वो तुरंत निकल गया। गैस की सबसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हार्टबर्न, यहाँ हमने कुछ भी खाया तो हमें एसिडिटी की वजह से हार्टबर्न हो सकता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। कॉजेस फॉर पुअर डाइजेशन, अब हमारा जो डाइजेशन है वो क्यों गड़बड़ाता है, क्यों पुअर होता है? तो व्हाट यू ईट एंड योर ईटिंग हैबिट्स, जो हम खाते हैं और हमारी ईटिंग हैबिट्स जो हैं, जैसे कि हम जल्दी जल्दी हमने खाया बिना चबाए या ओवर ईटिंग हमने कर लिया, तो उससे क्या होता है कि हमें जो है ब्लोटिंग महसूस होता है क्योंकि हमने बहुत जल्दी जल्दी खाया या जरूरत से ज्यादा खा लिया हमने। तो चूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेकिंग डाउन योर कार्ब्स। तो जितना भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जैसे वेजीज हैं, फ्रूट्स हैं, ब्रेड, कोई भी ग्रेन्स हैं, नूडल्स हैं, तो उनको पचाने के लिए और उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें खाने को चबाना बहुत जरूरी है। If you do not chew your food properly, then pancreas will have to make additional enzymes. उनको ओवरवर्क करना पड़ेगा और उस वजह से जो है हो सकता है कि वो आपका खाना ठीक से पचे नहीं। इसी वजह से साथ साथ जो है हम बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं या बहुत ज्यादा एसिडिक खाना खाते हैं, तो उससे भी हमारी जो रिफ्लक्स जो है वो एसिड रिफ्लक्स वो एग्रीवेट हो जाता है या वो बढ़ जाता है, और उससे हमें इंडाइजेशन महसूस होता है। और उसके साथ साथ देयर आर सम काइंड ऑफ फूड दैट टेक्स लॉन्गर टू डाइजेस्ट, क्योंकि अगर उसमें बहुत ज्यादा फाइबर है तो वो पचने में काफी देर लगाएंगे। और अगर हमने ये सोचा कि अब हमने लंच में ज्यादा फाइबर वाला खाना खा लिया, मान लो कई सारी चपाती खा ली या कोई और खाना खाया जिसमें बहुत सारा, जैसे पिज्जा आपने खाया उसमें बहुत ज्यादा फाइबर है, और फिर आप सोचेंगे कि शाम को अब डिनर टाइम हो गया, डिनर तो खाना ही है, डिनर तो वो क्योंकि अभी खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है और फिर आपने और खा लिया, तो फिर उससे भी आपको हो सकता है कि ब्लोटिंग हो या एसिड रिफ्लक्स हो। लाइफस्टाइल, ईटिंग लेट, अक्सर हम एक दूसरे के घरों में, आजकल तो शायद नहीं जा रहे, पर जब सब कुछ नॉर्मल था तो सब जाते थे एक दूसरों के घर, और खाना जो है अक्सर लेट होता था। तो पहले हमने स्नैक्स सर्व किए, उसके बाद में खाना रात को 11:30-12 बजे सर्व हो रहा है, तो वो बहुत लेट होता है खाने के लिए। साथ साथ लार्जर मील, क्योंकि आपने स्नैक भी खा लिया और उसके बाद में आप डिनर भी खाएंगे और बीच बीच में कुछ और भी खा रहे हैं। या कई बार हम यही होता है कि हम जब किसी बड़ी गैदरिंग में गए हैं, शादी में गए हैं, तो हम जो है सब अपनी पसंद की चीजें अपनी प्लेट में डाल लेते हैं, बड़ा बड़ा सारा जो अपना प्लेट देखते हैं तो काफी सारा उसमें खाना होता है जो हमारी जरूरत के हिसाब से ज्यादा होता है, जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा होता है। साथ में हमने खाने के
कुछ ड्रिंक ले ली, कोई जूस ले लिया, सोडा ले लिया, कई लोग अल्कोहल ले लेते हैं, कई लोग जो है खाने के बीच में स्मोकिंग करते हैं या टबैको यूज करते हैं। तो उन सब चीजों से भी जो है हमारा डाइजेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर बहुत देर से आपने खाना खाया तो उससे क्या होगा कि हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लार्जर मील्स खा रहे हैं आप तो उससे आपको जो है एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। बीच में हमने अगर खाने के साथ साथ हम कोई जूस ले रहे हैं या सोडा ले रहे हैं तो उससे भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उससे जो है रिफ्लक्स आपके जो स्टमक के एसिड है वो ऊपर आता है, तो उस वजह से आपको जो है ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल कैन कॉज स्टमक डिस्कम्फर्ट, डायरिया एंड अल्सर्स लॉन्ग टर्म में। तो जब हम अल्कोहल अगर किसी ने कंज्यूम किया है और उसके बाद खाना खाते हैं तो अभी जो हमारा ब्लड है वो सारा अल्कोहल पचाने में लगा हुआ है और उसके ऊपर से फिर खाना जाता है, तो वो जो है हो सकता है कि खाना अनडाइजेस्टेड हो और वो ऐसे ही पड़ा रहे और उस वजह से आपको हार्ट बर्न या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ साथ स्मोकिंग सिगरेट इज द कॉज ऑफ न्यूमरस डाइजेस्टिव इश्यूज इंक्लूडिंग हार्ट बर्न एंड अल्सर डेवलपमेंट। तो जो हमारा हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है और स्मोकर है तो उनको वो अवॉइड करना चाहिए। फूड पेयरिंग, कई बार हम जो है रॉ और कुक फूड साथ साथ खा लेते हैं, जैसे सैलेड खा लिया और कई जो है सैलेड में लेटस है और सारी रॉ वेजिटेबल्स हैं और साथ में कुक भी है, तो वो हमने जो है अगर उनको मिला के साथ साथ खा लिया तो हो सकता है कि ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि दोनों का डाइजेशन का टाइम अलग अलग है और उस वजह से हो सकता है कि दोनों में से एक जो है शायद ठीक से ना पचे। कई बार हम इनकम्पैटिबल फूड खाते हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं जाते, जैसे कि केला और दूध, वो दोनों साथ साथ नहीं जाते। तो अगर हमने दोनों को अगर मिल्क शेक बनाया या बनाना शेक बनाया दूध के साथ, तो उसमें क्या होगा कि बनाना का जो नेचर है वैसे वो खाने में मीठा है पर वो सावर में आता है, सावर फूड में फ्रूट में, और मिल्क इज स्वीट। तो दोनों को अगर हमने मिक्स किया तो वो जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और उस वजह से जो है हमारे एलर्जी की हमें प्रॉब्लम हो सकती है, या टॉक्सिन्स जो है हमारे बॉडी में वो रह जा सकते हैं, या और इम्बैलेंसेस हो सकते हैं हमारे स्टमक में या इवन बॉडी में। तो ये इस बात का ध्यान रखिए कि रॉ और कुक फूड अगर आपको सूट नहीं करता तो आप साथ साथ नहीं खाइए। इन जो कंपैटिबल फूड्स नहीं हैं उनको साथ में मत खाइए, और अगर आपको खाना है तो फिर उसके बीच में थोड़ा गैप रखिए, तो पहले सैलड खाइए उसके बाद में कुक फूड खाइए, नहीं तो फिर क्या रश्मि होगा जी, कि हाँ जी। एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा हाँ सा आप ऊंचा बोलिए। अच्छा ठीक है, आप मैं थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी स्वीट है बढ़ा मुझे देती पता है, बस थोड़ा सा वॉल्यूम कर दीजिए। हूँ। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो जो है रॉ और कुक फूड अगर आपको सूट नहीं करता, क्योंकि हर किसी को हर बॉडी एक जैसी नहीं है, किसी को सूट कर जाता है किसी को नहीं सूट करता, पर अगर आपको लगता है कि आपको ये चीजें सूट नहीं करती तो आप इन चीजों को साथ में मत खाइए, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखिए जिससे कि आपको डाइजेशन में मदद मिले। ओके, उसके साथ साथ जो है वाटर एंड फाइबर इनटेक, हम कितना पानी पीते हैं और कितना फाइबर खाते हैं उस पर भी बहुत ज्यादा जो हमारा डाइजेशन रिलाई करता है। तो जो डाइटरी फाइबर्स हैं जो वेजिटेबल्स में हैं, फ्रूट्स में हैं, बीन्स में हैं, होल ग्रेन्स में हैं, वो हमें हमारा जो बाउल मूवमेंट है उसको रेगुलर करने में मदद करता है। अगर हमने इनफ फाइबर नहीं खाया है तो फिर वो उसको जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकलने में वक्त लग सकता है, या वो कई बार निकलता भी नहीं है। तो इसी वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या कई कई दिन उन्हें जो है वो नहीं अपना एक्सक्रीट कर पाते वेस्ट मटेरियल। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि या तो पानी वो कम पी रहे हैं या फाइबर इनफ नहीं है उनकी डाइट में। तो और साथ में कई लोग जो है बहुत सारा फाइबर खाते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि टू मच फाइबर विल आल्सो कॉज ब्लोटिंग। तो या कई बार डायरिया भी लोगों को हो सकता है। तो कीप द बैलेंस कि इनफ फाइबर हो, इनफ पानी पिए और जो है बैलेंस मील खाइए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आजकल की लाइफस्टाइल इतनी बिजी है, इतने लोग जो है भाग दौड़ में हैं और
दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स ऑन देयर लिस्ट कि आज ये करना है, वो करना है, इसको फोन करना है, टू डू लिस्ट की जो है वो बढ़ती जा रही है। और कई बार जो है अननेसेसरी स्ट्रेस होता है किसी और वजह से। तो व्हेन यू आर एंग्शियस, उस टाइम हमारे जो हॉर्मोन्स हैं और केमिकल्स जो हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और वो हमारे डाइजेशन में इंटरफेयर करते हैं, उसमें जो है वो बीच में अड़ंगा लगाते हैं। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने स्ट्रेस को पहचानिए, अपनी एंजाइटी, किस चीज से आप एंशियस होते हैं उन चीजों को आप दूर करिए। और उनको दूर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जो लास्ट टाइम चारू जी ने जो दिया था प्रेजेंटेशन, उसके ऊपर भी था कि आप खुश रहिए और अपने 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 लिए टाइम निकालिए, मी टाइम निकालिए, जिससे कि आप जो है अपने ऊपर भी ध्यान दे सके। फैमिली का ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चों का, हस्बैंड का, घर में जो इन लॉज है उनका ध्यान रखते हैं, बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, अच्छी बात है। पर साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा सा ध्यान समय निकालिए, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, आप एंक्शियस हैं, तो वो आपका डाइजेशन पे सीधा सीधा असर करता है और उससे आपको और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को जितना हो तो सके कम रखिए। रश्मि जी, जब हाँ हम जी। खाते हैं या जब हम खुश होते हैं तो हम खाते हैं, फिर हमें एंजाइटी हो जाती है कि हमने तो बहुत खा लिया, फिर एंजाइटी होती है, फिर हम खाते हैं। हाँ, उसके भी अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं। जब हम खाते हैं तो वो जो है लेप्टिन है, वो बोलता है हमें कि अब हम फुल हो गए। और साथ से जो ग्रेलिन है एक हार्मोन, वो बोलता है कि हम जो है, मुझे अभी पेट नहीं भरा है और खाना है। तो एक हंगर हार्मोन है और एक सैटिस्फाइड हार्मोन है। तो वो दोनों जो है आपस में हमेशा उनकी जंग चलती रहती है, छिड़ी रहती है। तो वो आपको इसीलिए स्ट्रेस अगर आपका ज्यादा होगा तो ग्रेलिन जो है वो आपका हाई लेवल पे होगा। और अगर आप काम है तो आपका जो लेप्टिन है वो आपका हाई लेवल पे होगा। तो वो आपको बोलेगा कि बस पेट भर गया, अब और नहीं खाना। पर हमें अगर तो ग्रेलिन मौका आपका, चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए जो है खुश रहिए और अपना स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस और एंजाइटी को बिल्कुल लो लेवल पे रखिए। थोड़ा स्ट्रेस ठीक है, पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं। उसके अलावा स्लीप, स्लीप से हमें स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों होती है। अगर हमने ठीक से इनफ स्लीप नहीं ली है, हमारी बॉडी टायर्ड है, हम काम कर रहे हैं, अपने आप को ड्रैग कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे टाइमलाइंस हैं, ड्यू डेट्स हैं, डेडलाइंस हैं बहुत सारी, तो उस वजह से हमने इनफ, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, तो उसका भी सीधा सीधा अबाउट 40% जो है हमारा ब्लड लेवल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, वो अबाउट 40% इंक्रीज हो जाता है अगर हमने ठीक से नींद पूरी नहीं की है या हमारी बॉडी थकी हुई है। तो इसीलिए आपको टाइम पे सोना और टाइम पे जागना बहुत जरूरी है। और ये भी आप सोचिए कि नींद नहीं आ रही अगर, तो किस वजह से नहीं आ रही, उन चीजों को वो आप जो है उन फैक्टर्स को हटाने की कोशिश करिए। पर आपको जो बॉडी आपकी जितनी स्लीप चाहती है, कईयों को 6 घंटे, कईयों को 7, कईयों को 8 घंटे चाहिए, इवन बच्चों को 10-10 घंटे चाहिए होती है स्लीप। तो मेक श्योर करिए कि जितनी आपकी बॉडी को स्लीप की जरूरत है उतनी आप लीजिए। और कई बार हम ये करते हैं कि वीकेंड में हम लेट उठते हैं, तो उससे भी हमारा स्लीप साइकिल जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो कोशिश करिए कि वीकेंड हो या वीकडे, आप उसी टाइम सोइए और उसी टाइम पे आप उठिए, ठीक है ना। तो जो है और स्लीप हमारी अगर ठीक से पूरी नहीं हुई है तो उस वजह से हमें ब्लोटिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्टमक पेन, फूड सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा जो लोगों को आजकल हो रही है, और अक्सर वो नहीं रियलाइज करते कि स्लीप कुड बी द कॉज। और उससे क्योंकि हमारे जो गट माइक्रोबायोम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, और इसी वजह से हमारा जो है खाना ठीक से पचता नहीं है, और फिर खाना नहीं पचने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आइडेंटिफाई करिए कि हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से आ रही है। अगला है मेडिकेशन। हम कई बार होता है सर दर्द हुआ, बॉडी पेन हो रहा है, किसी और वजह से बुखार है, हमने दवाई ले ली, तो वो और कई लोग जो है लॉन्ग टर्म मेडिकेशन लेते हैं, उनको कुछ ना कुछ जो बीमारियां हैं उस वजह से। तो मेडिकेशंस हैं वो भी जो है हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। तो उन चीजों को आप जो है आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी मेडिकेशन से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए, हो सकता है वो चेंज कर दें आपकी मेडिकेशन, या जो है कुछ और दें उसकी बजाय। तो कोशिश करिए कि मेडिकेशन जो है आपकी, अगर वो ट्रिगर है तो उसको या तो चेंज करें या फिर उसको निकालने की कोशिश करें। कई बार जो है हमारा जैसे
सर दर्द हो रहा है तो वो आप वॉक करने जाएंगे, उसी से शायद ठीक हो जाए, या थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ले घर में, उससे ठीक हो सकता है। अगला जो रीजन है पुअर डाइजेशन का वो है लो स्टमक एसिड और एंजाइम्स और बाइल। तो हमारा क्या होता है कि शरीर में एसिड है, खाना जो हम खाते हैं वो स्टमक एसिड पचाता है, एंजाइम्स पचाता है, और साथ में बाइल सॉल्ट है। तो बाइल सॉल्ट जो है वो डिटर्जेंट की तरह काम करता है, तो वो जो है हमारे खाने जो जितने भी हम खाते हैं उनको वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जब लो स्टमक एसिड होता है, जैसे हम एंटासिड बार बार खाते हैं, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और वो बार बार एंटासिड खा लिया, पेप्टोबिस्मोल टाइप जो मेडिकेशन है, ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं उन्होंने ले लिए, और उससे क्या हो सकता है कि आपकी जो स्टमक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उस कम हो सकता है, क्योंकि अगर वो आपने लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं, बार बार खा रहे हैं एंटासिड्स या और दूसरे मेडिकेशंस, तो वो जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लो कर सकता है। साथ साथ जो है विटामिन डेफिशिएंसीज होती है कई लोगों को ना, इनफ विटामिन या मिनरल्स नहीं है, उस वजह से स्टमक एसिड कम हो सकता है। स्ट्रेस, एज फैक्टर, वो सारी चीजें भी जो है स्टमक एसिड को कम कर सकती हैं। तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करिए कि किस वजह से जो है स्टमक एसिड हमारा लो है, और फिर उनको जो है आप उनको टारगेट करके अपना ट्रीट कर सकते हैं। लो एंजाइम्स, हमारी जो पैनक्रियाज हैं वो एंजाइम्स बनाती हैं, और वो कार्ब को, उनका काम है जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करना, साथ में प्रोटीन और फैट को भी। पर अगर पैनक्रियाज हमारी टायर्ड है, क्योंकि हम बार बार ओवर ईटिंग करते हैं, बार बार खाते हैं, और बहुत ज्यादा उनसे काम, पैनक्रियाज से हम अपना काम करवाते हैं खाना पचाने के लिए, तो ओवर द इयर्स वो जो है इनएक्टिव हो जाती है या लेथार्जिक हो जाती हैं, वो अपना जो है एंजाइम्स बनाना है वो कम कर देती हैं। तो उस वजह से, क्योंकि हमारी खाने की चॉइसेस गलत हैं, या जैसे हाई कार्ब हाई शुगर खाना हम खा रहे हैं, तो उस वजह से भी जो है पैनक्रियाज हमारी इनएक्टिव हो सकती हैं। तो अपनी डाइट को फिर आप चेंज करिए, जिससे कि आपकी पैनक्रियाज फिर से काम पे लग जाए। और अगर हमारा पैनक्रियाज ने काम नहीं किया तो वही खाना अनडाइजेस्टेड पड़ा हुआ है हमारी बॉडी में, उस वजह से कोई ब्लोटिंग, गैस, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और है बाइल सॉल्ट जो है वो हमारे लिवर जो है वो प्रोड्यूस करता है बाइल सॉल्ट। तो अगर बाइल सॉल्ट नहीं है इनफ, तो फिर हमारा जो है गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आ सकती है, या खाना जैसे, क्योंकि बाइल सॉल्ट नहीं है इनफ, वो डिटर्जेंट नहीं है इनफ, लिवर ने नहीं बनाया, तो खाना जो है पड़ा पड़ा अंदर ही बॉडी में फर्मेंट हो रहा है, और धीरे धीरे जो है वो आपको गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन और सारी डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको दे सकता है। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करिए कि जो है किस वजह से खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ, या किस वजह से भूख नहीं लग रही, किस वजह से जो है एसिडिटी हो रही है, किस वजह से हार्ट बर्न हो रहा है, या और जो अभी सिम्टम्स में बात करी थे उनके बारे में बात करिए। अब कई लोगों को आदत होती है कि रात को जो है सोने से पहले उनको भूख लगती है, या आधी रात को उनको भूख लगती है, सो जाते हैं फिर सो के उठते हैं बीच में क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। तो नॉट हैविंग अ स्केड्यूल ईटिंग टाइम कुड बी अ प्रॉब्लम टू। उसमें क्या होता है कि हम अगर एक रेगुलर टाइम पे नहीं खाते हैं, कभी 7 बजे हमने डिनर किया, कभी 10 बजे डिनर किया, कभी 8 बजे डिनर किया, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, तो उस वजह से भी आपका जो है डाइजेशन पुअर हो सकता है, उस पे असर हो सकता है। तो कोशिश करिए कि आप कहीं भी हो, अपना जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम है वो अबाउट सिमिलर टाइम रखिए। अगर आप 7 बजे डिनर खाते हैं, या 6:30-7 बजे के आसपास खाते हैं, तो कोशिश करिए कि आधे 1 घंटे की विंडो में आप उसी में आप खा लें। तो 7 की बजाय 7:30 हो गया, ठीक है, पर 7 का अगर 10 होता है तो फिर दैट्स वेरी लेट। तो एक स्केड्यूल टाइम रखिए, और रात को उठ के अगर आपको खाने की जो है भूख की वजह से रात को अगर आप उठ जाते हैं, तो आप इस बात को पहचानिए कि क्यों आपको रात को भूख लग रही है, क्या है ट्रिगर, किस वजह से। मे बी आपने जो डिनर खाया था वो हाई कार्ब हाई शुगर डाइट थी, बहुत ज्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट था, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जल्दी पचता है, तो इस वजह से आपको भूख लगी।
तो आपको जो है उन चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे अब रात को भूख किस वजह से लग रही है। वही ईटिंग बिफोर बेड टाइम, आपने जो है सोने से पहले खा लिया, अभी खाना हमने जो खाया, खाते ही कई लोग आते ही लेट हैं और आते ही खाना खाया, खाने के बाद जो है वो सो गए। तो उसमें भी क्या होता है कि अभी आप, क्योंकि आपने कोई मूवमेंट नहीं करी, तो आपका जो है खाना अनडाइजेस्टेड पेट में ही पड़ा हुआ है और आप सो गए। तो जब हम सोते हैं तो हमारा जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना एक्टिव नहीं होता, इतना काम नहीं करता। तो फिर सुबह जब हम उठते हैं तो फिर हमें लगता है कि वो एसिडिटी हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, या और डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं। तो दैट कुड बी द रीजन कि आपने जो है लेट खाया और वो खाते ही आप सो गए। कई लोगों को दोपहर में खाने के बाद सोने की आदत है, खाया और थोड़ी देर नैप ले लिया, तो दैट कुड बी अ रीजन टू कि उनको जो है एसिडिटी या ब्लोटिंग या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करिए कि खाने के बाद आधा घंटा 15-20 मिनट कम से कम जो है थोड़ा वॉक कर ले, या जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है जो आप चल के कर सकते हैं वो करिए। तेज नहीं चल सकते, धीरे धीरे चलिए, टहल लीजिए, ऐसे ही गाने सुनिए उस समय। पर अगर आप बैठ के टीवी देख रहे हैं खाना खाते ही, या बैठ के खाना खाते ही सो गए, तो दैट कुड बी अ रीजन फॉर इंडाइजेशन। नॉट हैविंग अ शेड्यूल टाइम, हमको दोबारा आ गया फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी जैसे हमने अभी शुरू में क्वेश्चन आंसर्स में देखा था कि फिजिकल एक्टिविटी जो है हमारा ब्लड फ्लो बढ़ाती है, और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो मसल्स हैं उनमें भी वो ब्लड फ्लो हेल्प करता है। तो क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो एक तरह से मसाज करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो उससे क्या होता है कि हमारा डाइजेशन फटाफट काम करता है और इफेक्टिवली काम करता है। तो फिजिकल एक्टिविटी वेट लॉस ही नहीं, पर हमारा डाइजेशन और जो है एब्जॉर्प्शन उसमें भी वो हेल्प करता है। तो बी एक्टिव, बी फिजिकली एक्टिव। और कई लोगों को आदत है गम खाने की, च्युइंग गम, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो लोग गम खा रहे हैं। कई बार ऐसे ही गम खा लेते हैं, जब जैसे कई बार होता है कि पानी इनफ नहीं है उनके पास, तो सोचते हैं कि चलो एक गम मुंह में डाल लिया। तो अगर हैबिचुअल हैं गम खाने के, तो वो भी उनके डाइजेशन पे असर करता है, और उस वजह से उनको ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेट में पेन हो सकता है, और साथ में जो है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो भी होने की जो है हो सकता है, उसके भी चांसेस हैं। सम इश्यूज ड्यू टू पुअर डाइजेशन। तो ये तो सारे, मतलब कुछ मैंने बताया रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं डाइजेशन हमारा, हम कैसे खराब करते हैं उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो मैंने थोड़े कुछ ही पॉइंट्स के ऊपर मैंने आज बात करी है। पर जो जब हमारा डाइजेशन खराब हो गया तो उससे और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। उससे हेडेक लोगों को कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर जो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है उनको हेडेक की, बार बार उनको जो है सर में दर्द होता है। वेट गेन और वेट लॉस, अगर ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है, इनफ नहीं खा रहे तो वेट लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहना, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग। इमोशनल इम्बैलेंसेस, कई बार कई लोग जो है वो जरा सा भी इमोशनल झटका नहीं झेल पाते। अगर किसी फ्रेंड ने कुछ कह दिया, दिल को बहुत जल्दी से लगा लेते हैं, उनको पता नहीं चलता सर्टन सिचुएशन में वो किस तरह से रिएक्ट करे, क्योंकि वो इमोशनल जो है वो इम्बैलेंस हो चुकी है इमोशनली। और डाइजेशन जो है, उस डाइजेशन कुड बी अ रीजन कि वो इमोशनली इम्बैलेंस किस लिए हुए। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं हमारे बॉडी में, डाइजेशन उसका भी एक, पुअर डाइजेशन एक रीजन है उसका, हार्मोनल इम्बैलेंस का। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, क्योंकि हमारे बॉडी में जब खाना हमारा ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा और बॉडी ठीक से उन न्यूट्रिशंस को अब्सॉर्ब नहीं कर रही है, तो उस वजह से हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, और उनके फिर और बहुत सारे असर होते हैं। एंड देन अदर हेल्थ इश्यूज लाइक ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज से और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज भी उसी में आती है। तो वो भी सारा जो है पुअर डाइजेशन की वजह से हो सकता है।
तब क्या किया जाए, हाउ टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड कीप इट हेल्थी। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले तो जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि अपना खाना जो है वो चबाइए, अच्छे से चबाइए, कम से कम 25 से 30 बार हर बाइट को आपको चबाना चाहिए। तो आपका जो है खाने को एक साइड से दूसरे साइड आप ले जा सकते हैं चबा, अगर एक तरफ से खाते खाते मुंह थक गया है तो आप जो है खाने को एक साइड से दूसरे साइड घुमाइए धीरे धीरे उसको, और अच्छे से चबाइए। अगर आपके पास टाइम कम है खाने का तो आई से कि आप ऐसा अपना टाइम शेड्यूल करिए कि जहाँ पर आपको इनफ टाइम हो कि आप जो है खाना एंजॉय करें और ठीक से चबा के खाएं, ना कि जल्दी जल्दी भाग भाग के खाया। और साथ साथ जो है ईट कलरफुल प्लांट बेस्ड फाइबर रिच foods such as oats, millets, fruits, फाइबर वाले जो फ्रूट्स हैं वो खाइए, जैसे कि एप्पल है, पेयर है, पपाया, पाइनएप्पल, बीन्स खाइए, लेग्यूम्स खाइए, होल ग्रेन्स खाइए, ना कि रिफाइंड ग्रेन्स। तो मेक श्योर करिए कि आप जो है हर खाने में आपके 25 से 30 ग्राम फाइबर डेली हो। तो ये सब अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं कि मेरे पास मैंने इनफ फाइबर खाया है या नहीं खाया, क्योंकि इन सब चीजों में इनफ फाइबर है जो आपको रेगुलर रख सकता है। ड्रिंक मोर वाटर एज इट हेल्प्स रिमूव टॉक्सिन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। जितना हम पानी ज्यादा पिएंगे उतना ही जो है आपका टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल रिमूव होने में मदद करेगा, क्योंकि फाइबर आपने खाया पर अगर पानी इनफ नहीं है तो फिर वो जो है बाहर नहीं निकलेगा। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं फाइबर और वाटर साथ में लिखती हूँ, साथ में बोलती हूँ, क्योंकि दोनों से जो है आपको दोनों साथ में काम करते हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप जो है और अगर आपको खाने के पहले पानी पीना है आप थोड़ा पी सकते हैं, खाने के बीच में भी आप पानी पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी, पर खाने के बाद एटलीस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स और उसके बाद में फिर आप वो पानी पीजिए, नहीं तो फिर आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो आपका स्टमक एसिड है, वो बिल्कुल डाइल्यूटेड हो जाएगा और उस वजह से फिर वो इतना असर नहीं करेगा। तो 30 मिनट्स के बाद पीजिए। ओके और उसके साथ साथ जो है अवॉइड फूड दैट आर प्रोसेस्ड फ्राइड, जिसमें कलर्स डाले हुए हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं, क्योंकि ये सब जो है हमारी स्टमक लाइनिंग को खराब करते हैं। हाई फैट फूड है जो फ्राइड हैं वो हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देते हैं, उस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ फैट हैं जो हेल्दी हैं, जैसे कि देसी घी है, हम देसी घी अगर खाने में इंक्लूड करें 1 से 2 चम्मच हम देसी घी अगर डेली लेते हैं तो वो एक्चुअली लुब्रिकेशन देता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो वो बेनिफिशियल है। पर उसके अलावा और जो है हमने जैसे फ्राइड फूड खाया, समोसे, फ्रेंच फ्राइज या और दूसरे फ्राइड फूड हैं, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है, तो उस वजह से जो है उन चीजों को अवॉइड करिए। और पैकेज फूड, डब्बा बंद, हम जो रेडीमेड ले आते हैं रेडी टू ईट खाने, वो भी जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंक्लूड प्रोबायोटिक्स सच एज योगर्ट, लस्सी, छाछ, जो नमकीन लस्सी है, sauerkraut, किमची, kombucha, ये सब जो है हमारी गट बैक्टीरिया के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स इंक्लूड करिए। तो आप खाने में साथ में जो है छाछ बना के पी सकते हैं। लस्सी नहीं, लस्सी अगर आप पी रहे हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो मीठी लस्सी हो, नॉर्मल आप दही को चला लीजिए और आप बिना चीनी डाले आप उसको पी सकते हैं। अगर आपको स्वीट थोड़ा पसंद है तो थोड़ा सा हनी आप डाल सकते हैं उसमें, पर कोशिश करिए कि किसी ना किसी फॉर्म में प्रोबायोटिक आपकी हर डाइट में हो, क्योंकि वो जो है हमारे गट बैक्टीरिया को अच्छा रखता है, उनको जो है एक्टिव रखता है, उनको बढ़ाता है। तो इस वजह से जो है प्रोबायोटिक्स आपके खाने में होना बहुत जरूरी है। और आजकल तो मार्केट में जो है sauerkraut बहुत है, मिलता है, किमची जो है फर्मेंटेड कैबेज वो मिलती है, कोम्बुचा जो ड्रिंक है फर्मेंटेड वो मिलता है, वो भी मेक श्योर करें कि वो बिना चीनी वाला लें, तो फिर शुगर के अपने अलग नुकसान है। इंक्लूड सीजनल फ्रूट्स एज देयर हाई इन एंजाइम्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो जो फ्रोजन हम फ्रूट्स लाते हैं, मेक श्योर करिए कि वो सीजनल हो, जो सीजन में पैक किए गए हो। साथ साथ आज जैसे वाटरमेलन थ्रू आउट द ईयर मिलता है, हमेशा मिलता है, तो अगर सर्दियों में आप वाटरमेलन ले रहे हो वो सीजनल फ्रूट नहीं है, उस टाइम
सर्दियों में वाटरमेलन नहीं होता कहीं भी, तो कोशिश करिए कि जो सीजन के फ्रूट हैं, लोकल फ्रूट्स हैं, आप वही खाइए, क्योंकि उनमें ज्यादा एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना कि जो कोल्ड स्टोरेज में काफी समय से पड़े हुए थे और फिर उनको निकाल के जो है वो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सीजनल लोकल जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको खाइए, क्योंकि उनमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और उनमें एंजाइम्स हैं जो आपके गट बैक्टीरिया, आपकी गट हेल्थ के लिए हेल्पफुल है। अच्छा, साथ साथ जो है आप अभी जैसे मैंने बताया था, 1 से 2 चम्मच देसी घी अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, क्योंकि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और आपकी जो है डाइजेशन में, खाने को पचाने में हेल्प करेगा। डू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करिए या वॉक करिए खाने के बाद, जिससे कि आपकी जो है स्टमक और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी थोड़ा, उसको भी मसाज हो, उसका भी जो है ब्लड सर्कुलेशन तेज हो और वो डाइजेशन में आपको हेल्प करेगा। खाने के बाद जो है वज्रासन में या थंडरबोल्ट पोजीशन में बैठना, वो भी एक जो है आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप खाना खाने के कम से कम, खाना खाते ही आप जो है 10 से 15 मिनट जो है आप वज्रासन में या थंडरबोल्ट पोजीशन में बैठे, जिससे कि वो हमारे खाने को डाइजेशन में हेल्प करे। डेवलप गुड फूड हैबिट्स, अवॉइड स्ट्रेस एंड हैव अ स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल। अगर आप खाना जो खा रहे हैं, प्रोसेस फूड सब हटा दिया, हाई शुगर हाई कार्ब वाला खाना आपने हटा दिया, आप हेल्दी ग्रेन्स खा रहे हैं, आपके खाने में प्रोटीन भी है, आपके खाने में फैट भी है, और जो है आपने अच्छी फूड हैबिट्स डेवलप करी है, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, और अगर स्ट्रेस आता भी है तो आप यू नो हाउ टू मैनेज इट, एंड ऑल्सो हैविंग अ स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल इज रियली इम्पोर्टेंट, कि आप जो है टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे जाग रहे हैं, आपका जो है वक्त है हर चीज करने का, तो उससे जो है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक से काम करती रहती है, और साथ साथ जो है हमारे गट बैक्टीरिया, क्योंकि हमारे गट बैक्टीरिया को स्ट्रक्चर बहुत पसंद है, अगर आपका स्ट्रक्चर बिगड़ गया तो हमारे गट बैक्टीरिया जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो उनके लिए जो है इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कहती हूँ कि वीकेंड हो या वीकडे, आपको जो है टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, जिससे कि आपके गट बैक्टीरिया खुश रहें। साथ साथ ये सब कुछ होम रेमेडीज हैं, अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है या लग रहा है कि कुछ रेमेडीज चाहिए, तो आप जो है खाने के बाद जीरा और सौंफ का पानी 30 मिनट्स आफ्टर मील आप ले सकते हैं। ये सिर्फ जीरे का पानी ले सकते हैं, सिर्फ सौंफ का पानी ले सकते हैं। जीरा, उसको जो है सौंफ और जीरा या दोनों में से एक कोई भी चीज, उनको 1 कप पानी में आप 1 चम्मच जीरा डाल के उबाल लीजिए जब तक आधा रह जाए, और उसके बाद में उसको खाने के 30 मिनट्स के बाद ले सकते हैं, और हेल्प करेगा डाइजेशन में। साथ साथ जो है हींग, थोड़ी सी हींग जो है आपने 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में आपने खाने से पहले ले ली, तो वो भी आपको डाइजेशन में हेल्प करेगी। सीलियम हस्क और फाइबर, तो सीलियम फाइबर अगर आप रोज रात को खाने के बाद या सोने से पहले लेते हैं, तो उससे भी आपको जो है हेल्प मिलेगा एक्सक्रीशन में। और अब मैं तो ये भी सजेस्ट करती हूँ कि सीलियम हस्क या सीलियम फाइबर आप जो है आटा बनाते हैं, जो आटा गूंथते हैं, डो बनाते हैं, उसमें आप 1 चम्मच डाल दीजिए, क्योंकि वो एक एडेड फाइबर है, वो आपको हेल्प करेगा। तो वो, ये फाइबर जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकालने में हेल्प करेगा। तो क्योंकि जो आटा आता है उसमें फाइबर इतना नहीं है, इनफ नहीं है कि एक्सक्रीशन में मदद हो, तो उस वजह से आप 1 चम्मच सीलियम हस्क डाल सकते हैं या सीलियम फाइबर डाल सकते हैं, दोनों अलग अलग है। तो उससे जो है, या फिर नहीं तो आप जो ब्रान है वो ला सकते हैं, ब्रान भी डाल सकते हैं, आटा जब बना रहे हैं, डो बना रहे हैं, उसमें ब्रान मिक्स कर सकते हैं। अजवाइन, कैरम सीड्स या सौंफ, फेनल सीड्स, वो आप खाने के बाद ये दोनों को मिक्स करके जो है एक शीशी में रख दीजिए, और खाने के बाद आप इसको ऐसे ही चबा सकते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन में आपको हेल्प हो। कुछ और होम रेमेडीज हैं, आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं। एलोवेरा जूस
उसके साथ में आप सीलियम फाइबर मिक्स करके भी ले सकते हैं, तो उससे भी जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम हो सकती है या हट सकती है। तो एलोवेरा जूस जो है वो बेनिफिशियल है बहुत। 1/2 टीस्पून फ्रेश ग्रेटेड जिंजर आप जो है साथ में 1 पिंच रॉक सॉल्ट डाल के खाने से पहले आप ले लीजिए। उसमें भी, उससे भी हेल्प आपको होगा डाइजेशन में। कई लोग जो है अदरक और नींबू को काट के रखते हैं और फिर साथ में खाने के खाते हैं, वो भी हेल्पफुल है। टेक घी विथ मिल्क, ये मैं दोबारा बोल रही हूँ, पहले भी कहा था। टेक स्मॉल सिप्स ऑफ वार्म वाटर ड्यूरिंग ईटिंग, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप खाने से पहले आप पानी पी सकते हैं, या खाना खा रहे हैं उस वक्त गुनगुना पानी थोड़ा कुछ सिप्स ले सकते हैं, पर खाने के तुरंत बाद पानी पीना नहीं, नो। और साथ साथ जो है ठंडा पानी बिल्कुल नहीं। एप्पल साइडर विनेगर आप ले सकते हैं, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर आपकी स्टमक एसिड को बढ़ाने में मदद करेगा। तो अगर इनफ स्टमक एसिड नहीं है तो आप एप्पल साइडर विनेगर पानी में मिलाकर ले सकते हैं। और मेक श्योर करिए कि आप स्ट्रॉ से पीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक है तो हो सकता है कि आपको दांत में सेंसिटिविटी बढ़ जाए, तो इसीलिए जो है स्ट्रॉ से पीजिए। तो ये सब थे आज के हमारी थोड़ी इंफॉर्मेशन। बहुत सारा है इसके डाइजेशन के ऊपर, बट आई जस्ट ट्राई टू इंक्लूड सम जो रेलेवेंट मुझे लगा कि हम सब कॉमनली देखते हैं। तो दैट्स माय प्रेजेंटेशन। क्वेश्चंस? Thank you so much, Rashmi. माय प्लेजर। जी, questions क्वेश्चन से पहले पहले चैट कौन बॉक्स से- में। जी क्वेश्चंस अभी पढ़ते हैं। रश्मि, हाँ जी। पहले की तरह बहुत स्मूथली, बड़े आसानी से आपने बता दिया। कोई बहुत सी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं वो यूज नहीं करनी चाहिए, जो हम नहीं यूज कर रहे वो यूज करनी चाहिए। जैसे राइट। आपने केले की बात की, केला और दूध, और ये तो बहुत, मेरे ख्याल में हर घर में बनाना शेक बनता है, राइट। और वो आपने कह दिया कि नहीं, बड़ी नहीं अजीब खाना। बात लगी। हाँ। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो आमतौर पे हम दही में भी केले को डाल के बच्चों को खिलाते थे। राइट। तो आपने कहा कि कॉन्स्टिपेशन वो में भी तो, कॉन्स्टिपेशन में भी कहते हैं कि पता नहीं वो दूध दही दूध में और या केला दूध। नहीं, हाँ दूध और केला नहीं जाता। दही खट्टा है, दूध खट्टा है, दोनों खट्टे खट्टे हैं, So, पर दही is there और oat दूध milk, और केला almond नहीं। milk? Come Is by there जी the अंकल, oat अभी almond milk, milk. almond milk? हरीश अंकल अभी क्वेश्चंस लेते हैं, अभी क्वेश्चंस लेते हैं जी। Almond milk क्या कैसे? आमंड मिल्क ठीक है, वो क्योंकि वो नट मिल्क है, उनके साथ आप कोई भी फ्रूट डाल के भी बना सकते हैं, क्योंकि वो फटते नहीं है, है ना। दूध जो है, दूध में केसीन है, वो अलग हो जाता है वे से, जब हम कुछ भी खट्टा डालते हैं। तो जब हमने दूध और केला मिक्स करके हमने उसका शेक बनाया, या मैंगो शेक बनाया आम और दूध डाल के, तो वो जो है दोनों का नेचर अलग अलग है, तो वो जो है दूध फट गया एक्चुअली, और वही हम पी रहे हैं, क्योंकि वो ठंडा फॉर्म में है तो हमें पता नहीं चलता, और हमने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया तो हमें पता नहीं चलता, पर वो हमारी डाइजेशन की अच्छे से बैंड बजाता है। तो इसीलिए जो है उनको आप दोनों को साथ में कंज्यूम ना करें। तो इसका मतलब है तमाम मिल्क शेक गलत है। बिल्कुल, अगर आप मिल्क शेक पीना पसंद करते हैं, मेक इट विथ नट मिल्क। सोया मिल्क ले सकते हैं, कोई भी नट मिल्क ले सकते हैं, उसके साथ आप दूध डाल के मिल्क शेक बनाइए, पर नॉट विथ काउ मिल्क या एनी एनिमल मिल्क। पहले हम ये करते हैं, चैट वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर ठीक आप है। सब लोग हैंड रेज कर लें तो इजी होगा हमारे लिए। तो गुलनाज आप पढ़ेंगी चैट में कौन सा क्वेश्चन था? आपका ही था वैसे। नहीं, उससे पहले मदन अंकल का है। बनाना शेक इज वेरी कॉमन, हाँ, वो ऑफन हो गया। सोल्ड एट द रेस्टोरेंट्स। या तो रेस्टोरेंट्स वालों को फिर लेक्चर देना चाहिए। हाँ, पता नहीं क्यों, पर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट हायर करते हैं, और दे लुक एट देयर मेन्यू कि इसमें क्या चीज, क्या आप किस कॉम्बिनेशन के साथ बेच सकते हैं। पर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो अपने आप ही बस अपना बना लेते हैं मेन्यू, तो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। पर बना आपने कोई भी कहा, मिल्क। जी थैंक हाँ यू, जी। आपने कहा कि वो रॉ सैलड वगैरह जो है वो कुक्ड के साथ नहीं खाना चाहिए। तो जैसे हम
किसी फंक्शंस या इस तरह की गैदरिंग पे जाते हैं तो सबसे पहले सैलड्स वो देते हैं एज एपिटाइजर्स पड़े होते हैं, राइट। तो वो अनकुक्ड होते हैं, तो वो फिर हेल्दी नहीं है जब हम वो पहले खाएंगे उसके बाद फूड खा रहे हैं, या फूड के साथ लेना ठीक नहीं है। फूड के साथ लेना ठीक नहीं है। आपने पहले सैलेड खाया, कई गैदरिंग्स में वो लोग सैलेड पहले देते हैं, एंड यू नो देयर इज अ गैप बिटवीन यू नो सैलेड एंड द मेन कोर्स, आधा घंटा कम से कम वेट करते हैं हम, तो दैट्स फाइन, क्योंकि अब सैलेड का डाइजेशन का काम शुरू हो गया और फिर उसके बाद में आप कुक खा रहे हैं। पर सैलेड और कुक खाना अगर आपने साथ में खाया है तो क्योंकि हम तो एक दो बार हमारी शायद प्रॉब्लम ना हो, एक साल प्रॉब्लम ना हो, पर इफ दैट्स योर हैबिट over the in the long run it may cause indigestion or ये हम digestive issues. ये हम लोगों की एवरीडे की है कि जब खाना पकता है हम साथ सलाद बनाते हैं, रायता बनाते हैं, तो इसका मतलब है हमें नहीं बनाना चाहिए सलाद अगर आपको कम अभी अज तक कम। सूट कर रहा है तो ठीक है, पर अगर ब्लोटिंग है, इंडाइजेशन की और कुछ प्रॉब्लम है तो दैट कुड बी द रीजन। या और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कुछ लोगों की गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है तो गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, तो उनका बाइल वाला जो एंजाइम है वो तो नहीं स्क्रीट हो नहीं होता, सकता, हाँ। तो उनकी फैट की डाइजेशन फिर कैसे होती है? पर वो उनके और प्रॉब्लम भी जो एंजाइम्स हैं वो उनको जो है, इसलिए उन लोगों के लिए बोलते हैं कि लो फैट आप लीजिए या हेल्दी फैट लीजिए, जैसे एवोकाडो है या और हेल्दी फैट है, उनको वो लोग बोलते हैं लेने के लिए, क्योंकि एंजाइम्स हैं वो हेल्प करेंगे, बायल सॉल्ट नहीं है। पर कई बार उनको जो है डॉक्टर बायल सॉल्ट का सप्लीमेंट भी देते हैं क्योंकि उनका गॉल ब्लैडर नहीं है। ओके। आपने मुझे मेरी नानी अम्मा की याद दिला दी। आपने कहा खाने के बाद सौंफ और अजवाइन, तो वो पीस के रखती थी और चूरन दिया करती थी सबको बहुत बढ़िया। खाने में। तो वो मेरे ख्याल में अब दोबारा से करना पड़ेगा जी। हरिशंकर, आपका कोई क्वेश्चन था, अनम्यूट कर लीजिए। So it has already been clarified, yeah. वही almond milk zero वाला with banana shake. So it is clarified, yeah. There's no more question. It is self-explanatory. It was excellent, yeah, explanation. बेटी ने इतना अच्छा बना, क्वेश्चन का है ही नहीं है। थैंक यू अंकल जी। ओके, थैंक यू। सुखदेव अंकल, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी बेटा जी, सब तो पहला ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਔਰ ਰਸ਼ਮੀ ਬੇਟਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। she has given a very very comprehensive overview of the थैंक यू। system, and there is a science behind this. It's very nice, and I have just for my sort of knowledge that you did talk about Satiety Center and the Hunger Center. And do you have some, can we trick it some way that, because there is always a gap between the Satiety Center and the Hunger Center. And we know one method that ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਓ, ਵੀ ਜੇ 2 ਚਪਾਤੀਆਂ 3 ਚਪਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ still you need more. Right. And this is in routine that when we have enough good hunger, we keep on eating and we don't like to stop, but basically we are doing overeating. Right. So instead of this gap, waiting or stop eating, is there any other method by which we can strike a balance between the two? You can by incorporating good fiber in your diet and good fat in your diet और प्रोटीन साथ साथ, तीनों चीजें अगर हैं और आपका हाई कार्ब हाई शुगर अगर डाइट नहीं है, then your leptin will get increased. आपका प्रोसेस खाना है ज्यादातर, अधिकतर जो है उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो वो जो है आपका लेप्टिन को लो रखेगा, तो उस वजह से आप बार बार आपको खाने की इच्छा होगी, क्योंकि वो आपको अभी वो एक्टिव ही नहीं है, तो वो आपको फुलनेस की फीलिंग नहीं दे रहा है। तो सबसे अच्छा है कि आपका खाना है, आप खाने को देखिए, अपना खाने में हेल्दी फाइबर, हेल्दी फैट और थोड़ा सा प्रोटीन भी ज्यादा नहीं। हम हमेशा प्रोटीन के पीछे भागते हैं, तो ज्यादा प्रोटीन भी वो स्टोर्ड फैट के फॉर्म में हमारे शरीर में चला जाता है, रह जाता है। तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन
पर अच्छा फैट और अच्छा थोड़ा सा कार्ब, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्रेन्स हैं वो थोड़े, वेजिटेबल्स आप बढ़ाइए, तो उससे क्या होगा कि आपका लेप्टिन, जो आपका सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है, वो आपका इंक्रीज होगा, तो वो That's एक्टिव good. ज्यादा रहेगा, और बजाय कि आपका ग्रेलिन, दूसरा हार्मोन जो है, जो हंगर हार्मोन है, आपको बार बार भूख Okay. लगाता है। तो जितना आप कार्ब खाएंगे, जितना आप सिंपल कार्ब खाएंगे, जितना चीनी खाएंगे, उतना ही आपको और भूख लगेगी, क्योंकि वो एक्टिव हो गया, लैक्टिन Correct. आपका अभी एक्टिव नहीं है। तो इसीलिए सब्जियां ज्यादा खाइए, कोशिश करिए कि जो सब्जियां जिसमें फाइबर ज्यादा है वो आप खाएं, और उनको पचाने के लिए हमें फैट चाहिए, हेल्दी फैट, तो उनका कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, और साथ साथ प्रोटीन, जो कि हमारा जो है हमको फुलनेस, हमको फील कराता है कि हम फुल हो गए हैं, और रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। And second point is that you mentioned about autoimmune disorders. And these autoimmune disorders, are they ever under control by our food, or they are there at their own? they can be controlled by food. आप अपनी डाइट चेंज करके बहुत सारी उसमें जो उनके जो फैक्टर्स हैं उनको हटा सकते हैं, और उनको कंट्रोल किया सबसाइड भी कर सकते हैं। Because these days there are some reports that leaky gut is one of the reasons for you see this some of the autoimmune disorders, because राइट, some of the undigested foods in the form of complex antigens they cross. Basically, they should be converted into their monomers. And once they're not converted into monomers, then they create the whole problem. राइट, So yeah, they all can be controlled by food. first the leaky gut comes. So what I mean to say, I want to just clarify, because that means we should control the leaky gut via food, so that the antigens don't take entry, huh? Right. So that's why look into your diet first, make some changes, और जितना ज्यादा आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, जितना ज्यादा चीनी वाली चीजें खाएंगे, शुगर है, सिंपल शुगर है, तो उतना ही आपकी जो है ये सारी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। तो you'll have to make some changes in your diet. So basically, inflammation should be avoided so far as the dietary habits are concerned. And last point, small point, peanut butter. Can elderly people can consume a little bit of peanut butter? Of course, why not? It's healthy Right. fat. Okay, good. हाँ, और जितने भी प्लांट बेस्ड फैट हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो लोग अगर सोचते हैं कि पीनट बटर में कोलेस्ट्रॉल है, तो दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि इट्स प्लांट बेस्ड। तो काजू है, पीनट बटर है, यू कैन हैव कैश्यू बटर, यू कैन हैव मिक्स नट बटर, दैट्स फाइन। You can also have peanut butter if you're not allergic. Thank you very much, Beta. My Really pleasure. enjoyed your lecture. Bravo. My pleasure. Uh, Yeah. मैडम वो आपने स्वीट बहुत भी होता है अच्छा, बहुत ज्यादा। मैडम जी आपने बहुत अच्छा समझाया है। एक बात मैं Thank you. पूछना चाहता हूँ, क्या हम चाय के साथ केला खा सकते हैं? नहीं अंकल जी, चाय के साथ केला नहीं खा सकते, क्योंकि चाय का जो कैफीन है और केले की जो न्यूट्रिएंट है कैफीन, उसको डाइजेस्ट करने में नुकसान करेगी। और क्योंकि तो वो कई बार कब्ज हो जाती है ना, तो कब्ज के लिए चाय और केला एक खाना पड़ता है, तो कब्जी दूर हो जाती है। आप सिर्फ केला खाइए, चाय और केला दोनों कंबाइन करके तो नहीं होना चाहिए, पर आप सिर्फ केला खाइए, उससे भी कब्ज दूर हो सकता है। हाँ जी, सिर्फ केला खा के भी कब्ज दूर हो सकता है। अच्छा, केला खा के ही हो सकता है, ठीक है। मतलब चाय के साथ रस खाने से ठीक रहेगा? चाय के साथ मैं तो बोलूंगी कि आप चाय सिर्फ उसको एंटीऑक्सीडेंट की फॉर्म में आप लीजिए, उसी हिसाब से पीजिए। चाय के साथ आपको कुछ खाना है तो जो भी आप खाएंगे उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा इतना, क्योंकि जो कैफीन है वो उसमें इंटरफियर करता है एब्जॉर्प्शन में। तो नहीं चाय के साथ आपने रस खाया तो हो सकता है कि वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कर दे। नहीं, चाय के साथ लोग बिस्कुट खाते हैं, जैसे बिस्कुट हो गया, रस खाते हैं। तो वही कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो है, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस की जो है फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हमें कहाँ से आई। हम यही सोचते हैं कि हम तो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम तो खाना भी अच्छा खा रहे हैं, पर दे डोंट रियलाइज कि सुबह उठ के 4 उन्होंने बिस्किट खाया या एक रस लिया चाय के साथ, तो वही हैबिट है उनकी, सालों से वही कर रहे हैं, और अब अचानक से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया।
नहीं जैसे हाँ। जैसे चाय के साथ कोई मतलब के खाते हैं, मतलब के नमकीन खाते हैं, समोसा खाते हैं, वो बर्गर वगैरह खाते हैं, लोग खाते हैं जी, तो मतलब वो डाइजेशन के लिए तो नुकसानदेही होगा। बिल्कुल, पर मेरे हिसाब से तो फिर चाय को आप चाय की तरह सिर्फ चाय पीजिए, क्योंकि उसके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। बट वो टी पार्टी, जो टी पार्टीज होती हैं या हम नाश्ते में हाँ जो लेते हैं चाय नाश्ते के बाद, तो वो फिर थोड़े वक्फे के बाद रुक के लेनी लीजिए, चाहिए। हाँ थोड़ा रुक के लीजिए, चाय और मीन नाश्ता 5-10 साथ साथ। मिनट्स। नहीं, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स वेट करिए। जैसे हमारे और हमारे आदमी हैं, वो चाय के साथ परोठे परोठे खा लिए, फिर बाद में चाय पी ली। तो वो इसीलिए फिर वो सब और प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, हम वो रियलाइज नहीं करते कि हमें कोलेस्ट्रॉल या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम किस वजह से आई। पराठा तो डिप करके भी चाय में, इसीलिए मैंने कहा कि लाइफस्टाइल अपना जो है उस पर भी ध्यान दीजिए कि क्या वो हमारा लाइफस्टाइल है। मुझे वो जेदी याद आ गया वो अंकल की बात से ना। वो उसका प्रोग्राम था, वो केला डिप करके चाय में, बड़े मजे का था वो। आपने कहा कि वो पीनट बटर इज गुड, लेकिन पीनट बटर मीठा बहुत होता है, तो वो मीठा नहीं, जो आप है घर वो में बनाइए, फैट्स। घर में बनाइए। ओके, घर में। बाजार का पीनट बटर काफी। उसमें तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, पर आप न्यूट्रिशन लेबल देखिए उसमें, अगर उसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है या उससे उसी की फैमिली का और चीजें हैं, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। अगर उसमें इंग्रेडिएंट में लिखा है ओनली पीनट्स, दैट्स फाइन। अगर उसमें कुछ भी एडेड है देन लुक फॉर समथिंग एल्स, या घर में बनाइए, घर में बनाना बहुत इजी है। रेशमी जैसे पानी, रेसिपी ढूंढने को। हाँ, मैडम जी जैसे पानी पी करके चाय पी सकते हैं, हाँ जी, पानी पी के चाय पी सकते हैं, बिल्कुल। कितनी देर के बाद? पानी भी तुरंत बाद भी पी सकते हैं। अच्छा साथ साथ भी पी सकते हैं। वो केले वगैरह नहीं खा रहे थे। बहुत अब अच्छा पहले आपने बताया हमें, रियली वेरी अप्रिशिएबल। पहले पानी पीजिए, चाय बैठिए आराम से, और उसके बाद में फिर आप चाय को एंजॉय करिए। ठीक है, मतलब चाय के साथ बिस्कुट और केले कुले ये नहीं खाने। चाय के साथ कुछ भी खाएंगे अंकल जी तो उसका जो है न्यूट्रिशन, वो एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अच्छा, कैफीन उसको इंटरफियर करता है। वैसे इस इसका मतलब प्रोग्राम अभी के तक बाद जो नाश्ता हमने खाया है वो। मैं बात करूं आप 1 मिनट के लिए? हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। जी जी रिंतु जी। पहले तो सबसे पहले तो रश्मि, मैं तो कमेंट करना चाहती हूँ कि आपका प्रोग्राम मतलब मजा आता है कि बड़े आराम से इतनी स्वीटली आप एक एक और बात बताती है ना, तो क्वेश्चन का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मैं तो ये कमेंट करना चाहती हूँ कि अब हमें रश्मि के अकॉर्डिंग जो है ना, जो बचपन से वो पड़ी हुई है, वो नमकीन पराठा चाय में डिप करके भी खा सकते हैं, जो है अजवाइन वाला, है ना, तो वो चाय के साथ बिस्किट भी खा सकते हैं। अब ये सारी चीजें हैं। अब कच्चा मैंगो शेक तो हर घर में बनता है, हर घर में मैंगो शेक बनता है, बनाना शेक बनता है, सब कुछ है। तो वो कच्चा सैलेड नहीं खाएंगे। अब जब भी कुछ खाने के लिए जाएंगे ना, देखेंगे पहले पहले की रश्मि की बात याद आ जाएगी। रश्मि ने बोला था ये नहीं खाना, इसके साथ ऐसे हो सकता है। तो सच्ची में नहीं, थोड़ी अच्छा देर है या नहीं रिंतु जी थोड़ी देर सोचेंगे, लेकिन फिर खा जाएंगे। नहीं खाने की बात तो चलो जो भी है, खाना है कि नहीं खाना वो बात की बात है। लेकिन एक बार तो ये तय है कि रश्मि का बात तो हमें दिमाग में एक बार स्ट्राइक करेगी। नहीं नहीं, फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता छूट भी जाएगा। गुलनाज ऐसी नहीं है कि अगर अच्छे के लिए है सारी चीजें तो हम राइट, या वो अगर आप कॉन्शियसली सोचेंगे तो होगा चेंज, तो फिर वो हम छोड़ अगर कॉन्शियसली नहीं सोचेंगे तो फिर चेंज लाना मुश्किल है। पर देंगे। वही है, अगर लाइफस्टाइल में आपने थोड़ी चेंजेस ले आए तो यू सी द रिजल्ट्स, यू सी लॉट ऑफ आपका वेट लॉस होगा, आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो आपके बंद हो जाएंगे, स्किन रैशेस जो हो रही हैं या जो लीकी गट से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, घर वालों को कैसे समझाओगे? आप तो समझ गए, मगर घर वालों को कैसे बंद करोगे ये बताओ। तो मोहिनी आंटी, हमने ये प्रोग्राम YouTube पे रखे हैं ताकि आप उनके साथ बैठ के देखें, उनको बताइए। बिल्कुल। आपका काम है उनको एजुकेट करना। हम ये प्रोग्राम इसीलिए लेके आते हैं ना कि हाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात फैलाए।
क्योंकि मेरी ये हैबिट है कि मेरे को जब अगर थोड़ा सा स्ट्रेस होता तो मेरा खाने को मन करता है, मैं अकेली बैठ के फिर खा लेती हूँ। तो वो ये भी तो बैड हैबिट है ना, इसको भी चेंज। हाँ, क्योंकि कोर्टिसोल भी तो हमें भूख लगाता है ना, या तो कोर्टिसोल ज्यादा हो गया तो कई लोगों को भूख बिल्कुल नहीं लगती, वो कुछ भी नहीं खा सकते स्ट्रेस में, और कुछ लोगों को बहुत वो खाते हैं। जैसे कई बच्चे हैं वो पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते वो मुंह उनका चलता रहता है, क्योंकि कोर्टिसोल उनका एक्टिवेट है, वो भूख लगाता रहता है। बिल्कुल। और कई बच्चे जब कहते हैं कि सॉल्ट के साथ मतलब दूध चाय के साथ सॉल्टी चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी चाहिए। तो हमारे साथ नीरज जी हैं, उनका तो नहीं कोई क्वेश्चन? मेरा नहीं ख्याल कि नीरज जी का कोई क्वेश्चन होगा।